हाँ बच्चों, आज आप लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पहली घटना है, प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज, आज हम उसे समझाएंगे। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में एक रेफरेंस दिया था, लेकिन आज जो उसकी पहली घटना है, प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज, हम उसके बारे में बताएंगे। देखिए, प्री फर्टिलाइजेशन जो स्टेज होती है, तो प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज में दो चीज़ें सेक्सुअली रिप्रोड्यूस एनिमल्स एडाप्ट करते हैं। एक तो गैमेटोजेनेसिस और दूसरा गैमीट ट्रांसफर। तो गैमेटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर आर टू फैक्टर्स, two events takes place in sexually reproduce organism, that is gametogenesis and gamete transfer। तो सबसे पहले हम गैमेटोजेनेसिस के बारे में हम चर्चा करेंगे कि गैमेटोजेनेसिस क्या है। गैमेटोजेनेसिस is a mechanism in which all the organisms which sexually reproduce at first produce gametes, that is male and female gametes. Male gametes are known as sperm and female gametes are known as egg and ovum. Gametes may be produced by the same individual or from the different individuals. If single individual produce gametes are known as bisexual. When different individual produce different gametes are known as unisexual. So sexuality is very important in the production of gamete. In the case of algae fungi, gametes are also identical. We are not clear to identify whether it is male or female. These gametes are known as isogametes, homogametes. There is some gametes produced by animal are different. Male and female are very clear, and these animals are known as unisexual, and gametes are known as heterogametes. So isogametes and heterogametes, two types of gametes produced by the organism. सेक्सुअलिटी के बारे में अगर हम देखें, in the case of plants, in the case of fungi, fungus may be homothallic or heterothallic. Homothallic, it means it produces male and female gamete both by single fungus.
Heterothylic, it means fungus bodies are different. One fungus produce male and other produce female gametes, and these are heterothylic. As in case of plants, if one plants produce male and female both gametes are known as bisexual, and if produce different gametes by different plants are known as unisexual, like papaya, date palm. But we see often a single plant produce unisexual flower in the same plant. One branch produce male flower and other branch produce female flower. This type of plants is known as monoecious plant, like cucurbits. Whereas some plants produce single gametes, single flower, are known as dioecious plant, like papaya. One papaya plants produce male flower and other produce female flower. इस प्रकार अगर हम ये देखें तो यूनिसेक्सुअल प्लांट्स आर आल्सो नोन एज, विच प्लांट्स प्रोड्यूस मेल फ्लावर आर नोन एज unisexual staminate, and when one plants produce female flower only are known as unisexual pistillate. अगर हम ये देखें तो विभिन्न प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं, खीरा ककड़ी में आप देखेंगे कई पौधे में एक ब्रांच पर मेल फ्लावर लगेगा, दूसरे ब्रांच पर फीमेल फ्लावर लगेगा, तो हम इनको मोनोसिस प्लांट्स कहते हैं। उसी जगह सरसों का पौधा देखें, उसमें एक ही फ्लावर में दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। दीज आर बाइसेक्सुअल फ्लावर। नॉट प्लांट इज बाइसेक्सुअल बट फ्लावर इज बाइसेक्सुअल। दूसरा उदाहरण है जैसे डायोसियस प्लांट अगर हम देखें, पपीता, उसमें एक पौधे पर मेल फ्लावर लगेगा, दूसरे पौधे पर फीमेल फ्लावर लगेगा, तो इनको हम ये कह सकते हैं कि ये यूनिसेक्सुअल पिस्टिलेट और स्टेमिनेट। तो हम उनको हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। अगर सरसों का जैसे पौधा है उसमें एक ही फ्लावर में दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं, हम उसको हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। हर्माफ्रोडाइट फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो इस तरह से ये अगर ये देखा जाए तो कुछ शब्द हैं जिनको जानना जरूरी है। गैमीट फॉर्मेशन में अगर हम अब ये देखें कि गैमीट की बनने की जो क्रिया है, गैमेटोजेनेसिस है, ये निर्भर करता है प्लॉइडी पर कि प्लांट्स का प्लॉइडी क्या है। प्लॉइडी का मतलब ये है कि उनके अंदर क्रोमोसोम संख्या कैसी है। जैसे अगर हम ध्यान दें, ब्रायोफाइट, आपका ये एल्गी है, फंजाई है, ब्रायोफाइट हैं, दीज आर द प्लांट्स आर हैप्लॉइड, माने इनकी कोशिकाओं में जो क्रोमोसोम्स सेट है वह यन पाया जाता है, सिंगल पाया जाता है। तो क्रोमोसोम सेट इनकी प्लॉइडी यन होती है। व्हेरेज टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म प्लांट्स
सो डिप्लॉयड प्लॉयडी, तो डिप्लॉयड होते हैं, तो हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड। यदि वो हैप्लॉयड प्लांट है तो ऐसे प्लांट्स में अगर उनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो मात्र वह समसूत्री विभाजन के द्वारा गैमीट प्रोड्यूस करेंगे। तो हैप्लॉयड प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइट, एल्गी, फंजाई produce their gametes by mitosis division, because the ploidy of the organism are haploid, whereas those plants which has diploid ploidy, they produce gametes by reductional division or meiosis। इस प्रकार गैमीट फॉर्मेशन की जो गतिविधि है वह उनके प्लॉयडी पर निर्भर करता है। गैमीट produced either by mitosis in haploid or by meiosis in diploid, always be haploid। all the gametes, चाहे वो haploid ऑर्गेनिज्म से माइटोसिस द्वारा बने, चाहे वह डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म से मियोसिस द्वारा उत्पन्न हो, लेकिन गैमीट हमेशा हैप्लॉयड होता है। किसी का गैमीट डिप्लॉयड नहीं होता। बनने का उनका मेथड अलग अलग है। अगर हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो माइटोसिस से बन जाएंगे, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो मियोसिस से बनेंगे, लेकिन बनेंगे तो वो हमेशा वो हैप्लॉयड होंगे, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का हैप्लॉयड होना ही उनकी एक क्वालिटी है। और ये दोनों हैप्लॉयड गैमीट जब आपस में मिलते हैं तो फिर वो फर्टिलाइजेशन कहलाती है, फ्यूजन कहलाती है, और फिर वो जाइगोट बनाते हैं। लेकिन ये जो गैमीट हैं, ये जो बनते हैं, ये गैमीट्स haploid set of chromosomes reaches in each gamete। तो all these about गैमेटोजेनेसिस, ये सभी चीज़ें हमने गैमेटोजेनेसिस के बारे में बताया। इसके बाद एक दूसरा खंड है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का, गैमीट ट्रांसफर। देखिए, मेल एंड फीमेल में जब गैमीट बन जाते हैं, चाहे वो स्पर्म बने चाहे वो ओवम बने, तो गैमीट बनने के बाद जब गैमीट वो बन जाते हैं तो ये गैमीट बनने के बाद ये दोनों का मिलना आवश्यक होता है। तो मेल गैमीट जनरली मोबाइल एंड फीमेल जनरली स्टेशनरी। एक गतिशील होता है, दूसरा स्थिर होता है, गतिशील नहीं। इन द केस ऑफ एल्गी, whereas where both the gametes are similar, they are called isogametes। in that case both gametes are mobile। आइसोगैमेट जिसमें होते हैं, कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जिसमें उनके मेल और फीमेल गैमेट में आप पहचान नहीं कर पाएंगे कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, तो उसमें दोनों जो है मोबाइल होते हैं, पहचान ही नहीं आता। लेकिन दूसरों में मेल क्लियर होता है कि मेल इज मोटाइल, ये हमेशा जो है गतिशील होता है, और फीमेल इज नॉट मोटाइल। फीमेल इज नोन एज ओवम और एग, मेल इज नोन एज स्पर्म और एंथ्रोजॉइड। इन द केस ऑफ ब्रायोफाइट एंड टेडोफाइट, मेल गैमीट्स
reaches to female gamete by their motility, and in the water medium, so we can say that water is necessary for the motility of male gametes in the bryophyte and pteridophyte algae. अगर हम ये देखें कि इनकी जो मोटेलिटी है, इनका जो गतिशीलता है, ये हमेशा इस प्रकार अगर ये कहा जाए तो बड़े ही स्पष्ट रूप से ये गैमीट आइडेंटिफाई हो जाते हैं. But in higher plants like gymnosperm and angiosperm, male gametes produced within the pollen grains and female gametes produced within the ovule. In this case, pollen grains transfer from one flower, from one plant to another flower or plant's stigma by the agent like air, water and animals. And this process is known as pollination. When male gametes reaches to ovum, they fuse together, and this process is known as fertilization. Fertilization is another events of the sexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने बताया था कि इसमें 3 घटनाएं हैं: प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन. तो प्री फर्टिलाइजेशन की घटना को हमने इंगित किया. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये जो पहली घटना थी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, इसको हमने समझाया. और इसे आप एक बार 2 बार देख करके जब देखेंगे तो फिर बातें आएंगी. और किताब भी अपना पढ़ेंगे, एनसीईआरटी बुक आप पढ़िए, तभी ये बातें समझ में आएंगी. इसके बाद आप का जो सेकंड व्यू है, इसमें सेकंड इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्टिलाइजेशन, और इसके बाद है पोस्ट फर्टिलाइजेशन. ये 2 इवेंट्स और है इस चैप्टर में. अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे. धन्यवाद.